Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are doing good. So today we are going to start a new chapter that is a part of the same chapter. It's a poem that is the listeners. ठीक है, सुनने वाला और सुनने वाले. So before starting the poem, this is a rule that we first know about the poet, the person who write the poem. So there's a difference between the poet and author. The person who wrote the poem is known as poet, and the person who write the chapter, complete story, a complete theory, that person was called an author. ठीक है. So Walter de la Mare, 1873-1956, spent more of his life writing poems and stories, mostly for children. His first book of poems was called Songs of Childhood, 1902. The main themes he wrote about were romance and nature. His style was simple and the mysterious of magic, the moonlight and the quietness fascinated him greatly. These subjects are introduced most of his poems. In many of poems there is a mystery which readers must solve as best as they can. This is one of the best known poem and the reader is left with many questions. So here we talk about the poem Walter. Walter always write the poems and stories. ठीक है, उनकी जो ज़्यादातर poems है वो magic पे, moonlight पे और mysterious logic पे है. ठीक है, mysterious logic यानी लोगों को confuse कर देना. ठीक है, जादुई दुनिया पे. इसके अलावा उनकी जो सबसे फेमस थी वो सॉन्ग ऑफ चाइल्डहुड है. ठीक है, इनके अलावा उन्होंने बहुत सारे पोएम्स, बहुत सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए. नेचर के बारे में वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं. ठीक है, और कुछ तो इतनी मिस्टीरियस होती हैं कि लोग उनको सॉल्व करते हैं जितने अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये भी एक ऐसी पोएम है जिसको वो हज़ारों क्वेश्चन के साथ छोड़ चुके हैं कि आगे क्या हुआ, क्या. नो वन नोज. इफ़ यू कैन सॉल्व दिस सो यू कैन, बट नो वन कैन. सो नाउ वी हैव वर्ड्स टू नो. The first word is champed. Champed meaning chewed. Cropping, biting off and eating the tops of plants. Descended, came down. Fanny, covered in ferns. Hearkening, paying close attention, listen carefully. Neath, underneath. That is apostrophe beneath means underneath. Perplexed, baffled, confused. Phantom, a ghost or something that is imaginary, not real. Sill, a shelf-like ledge below a window. Snort, hit hard. Spack, a very old-fashioned way of writing spoke. ठीक है, spack. The past tense of speak. Strip, a loop with a flat base that's supposed to ride a foot on each side of the saddle. Turf, grass and the surface layer of earth held together by roots. Turret, a cylindrical tower rising from the building. So these are words to know. ठीक है. Now moving toward the poem. Is there anybody there? Said the traveller, knocking the moonlight door. On his horse in the silence champed the grasses on the forest fanny floor. ठीक है, it means that an unnamed figure. ठीक है, the traveller knocks on the door of the house. ठीक है, in the moonlight and asks if there's anyone inside. The traveller horse breezes in the quiet. ठीक है, quiet forest while the traveller waits for a response. अच्छा, अब क्या होता है कि वो एक बंदा आता है, अननोन सा बंदा है. ठीक है, उसको नहीं जानते कि ये यहाँ पर क्यों है. वो क्या करता है कि दरवाज़ा खटखटाता है मूनलाइट, चांद की रोशनी में, अंधेरे में. ठीक है, दरवाज़ा खटखटाता है, वेट करता है. उसका घोड़ा जो है वो चैम्प्ड का मीनिंग हमने ऊपर पढ़ा ना, च्यूड, चबाता है, क्या ग्रासेस खा रहा होता है. ठीक है, आगे. And a bird flew up out of the turret. ठीक है, above the traveller's head. मतलब the next lines describes that a bird flies out of a small tower
ऑन द हाउस एंड ओवर द ट्रेवलर्स हेड। अब जितनी देर में फर्स्ट स्टेंसा में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वो आके डोर नॉक करता है, उसका जो घोड़ा होता है वो घास खाता है, ठीक है, और वो वेट करता है। सेकंड स्टेंसा में वो कहते हैं कि परिंदे होते हैं बहुत सारे, एक बिल्डिंग से अचानक से निकलते हैं उसके सर के ऊपर से, ठीक है, अचानक से गुजर जाते हैं। एंड he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said. और वो दोबारा दरवाजे को काफ़ी तेज़ी से खटखटाता है कि यहाँ पर कोई है। But no descended to the travellers, no head from the leaf-fingered sill leaned over and looked into his grey eyes. ठीक है, लेकिन कहते हैं कि कोई भी no one comes down from the house, ठीक है, to meet him. However, no one even leans out of the window. कोई उसको नहीं आता मिलने के लिए, ठीक है, नीचे, यहाँ तक कि कोई खिड़की से भी नहीं देखता। And sill of which is covered in leaves to look at him, ठीक है, सिर्फ वो विंडो जो है लीव से कवर्ड है जो उसको नज़र आता है, उसके अलावा कोई भी नहीं आता, ठीक है। The next is where he stood perplexed and still, ठीक है, he stand in a place puzzled by the lack of the answers, यानी वो वहीं पर खड़ा puzzled confused खड़ा हुआ है बहुत सारे questions answers के साथ कि भाई क्यों कोई नहीं आ रहा, क्यों कोई इसे देखने नहीं आ रहा, what is the situation there. Now but no one but only a host of phantoms listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to the voice from the world of men. अच्छा, इसमें अब ये डिस्क्राइब करते हैं कि घर के अंदर जो है ना ग्रुप ऑफ घूस्ट्स बिगिंस, द लिसनर्स स्टैंड इन द मूनलाइट एज दे लिसन टू अ ह्यूमन वॉइस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। अब घर खाली है, घर पुराना है। फैंटम्स मतलब भूत, उसमें सारे भूत होते हैं, वो सारे खड़े होकर इस बंदे को सुनते हैं कि किसी बंदे की आवाज़ है, किसी की आवाज़ आ रही है, ठीक है, इस चांद की रोशनी में वो खड़े होकर सुनते हैं। सो इन द फर्स्ट पेज दे डिस्क्राइब, ठीक है, दे डिस्क्राइब कि होता कि एक बंदा आता है, वो दरवाज़ा नॉक करता है, कोई उसका दरवाज़ा नहीं खोलता, परिंदे उड़ जाते हैं, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, वो दोबारा से दरवाज़ा नॉक करता है, तो क्या होता है कि घर के अंदर जो फैंटम्स होते हैं, जो घूस्ट होते हैं, वो उस बंदे की आवाज़ सुनते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। Stood throwing the faint moonbeams on the dark stairs that goes down to the empty hall, hogging in an ear stirred and shaken by the lonely traveler's call. ठीक है, अब क्या होता है कि जो okay, let me explain in English. The ghostly begins crowd around the staircase onto which moonlight streaks as quiet atmosphere in the empty house is disturbed by the sound of traveler lonely voice. अब क्या होता है, जो घूस्ट होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जो स्टेयर्स के साथ खड़े होते हैं, ठीक है, उस स्टेयर्स में सिर्फ चांद की रोशनी, चांदनी पड़ती है जो कि हॉल में जाती है, ठीक है, वो सारे वहाँ पर खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि इतनी खामोशी में, ठीक है, खाली घर की खामोशी में सिर्फ एक आवाज़ आ रही है, वो उस ट्रैवलर की आवाज़ है, ठीक है, सिर्फ उस ट्रैवलर की आवाज़ आ रही थी उस घर में। एंड he felt in his heart their strangeness, their stillness answering his cry, ठीक है। अब आउटसाइड द जो ट्रैवलर होता है, ठीक है, वो अजीब सा फील करता है इस साइलेंस में, ठीक है, मीट हिज क्वेश्चन, मतलब अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, वो सिर्फ उनका देख रहा होता है, सुन रहा होता है कि ये क्या अजीब व गरीब सी आवाज़ें हैं, जैसे कि कोई उससे कुछ पूछ रहा हो। While his horse moved cropping the dark turf beneath the stirred and leafy sky, ठीक है, इतने में क्या होता है कि जो उसका घोड़ा जो होता है, ठीक है, उसका जो घोड़ा होता है वो beats on the continues to graze in the dark forest, ठीक है, वो कंटिन्यूसली वो चीज़ें, वो घास खा रहा होता है, ठीक है, ओके, neath the stirred and leafy sky, ठीक है, above the sky above full of stars and obstacles by tree. उसका घोड़ा वही खड़े होके वो घास खा रहा होता है, ऊपर आसमान में बहुत सारे सितारे हैं, दरख्त है, लेकिन ही इज़ बिज़ी इन डूइंग हिज ओन, ठीक है, वो अपना ही बिज़ी है।
Now, for he suddenly smote on the door even louder and lifted his head. Tell them I came and no one answered, that I kept my words, he said. अब जो ट्रैवलर्स होता है, ठीक है, जो ट्रैवलर होता है, जो आया होता है, वो दोबारा से डोर को खटखटाता है ज़्यादा तेज़ी से और बोलता है कि जो भी मुझे कोई सुन रहा है तो मेरा ये मैसेज उनको दे दे, ठीक है, दैट मैं यहाँ पर आया, किसी ने मुझे आवाज़ नहीं दी, किसी ने मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने अपना प्रॉमिस रखा कि मैं यहाँ पर आया. नेवर द लीस्ट स्टेयर Never the least stir made the listener, though every word he spake, full echoing through the shadow of the still house, from the house of man left awake. ठीक है, अब जो लिसनर्स हैं, अंदर जो घोस्ट हैं, उन्होंने कोई इमोशन नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया. ट्रैवलर्स ने जो बोला, ठीक है, उस डार्क में, एम्प्टी खाली हाउस में, ठीक है, किसी लिविंग पर्सन की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. वो बोलता रहा, उसने जो बोलना था, उसने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन उसको किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. ठीक है, they heard this, his foot upon the stirrup and the sound of iron one stone, and how the silence surged softly backward when the plugging hoofs were gone. ठीक है, अब क्या हो गया, जो लिसनर्स थे उन सुन तो रहे थे, ठीक है, एंड और फिर एक साउंड आती है, ठीक है, होश शो ऑन द स्टोन पाथ एज द ट्रैवलर राइड अवे. जब ट्रैवलर जाने लगता है, अपने घोड़े पे बैठ के जाने लगता है, तो उसको आवाज़ आती है. ठीक है, अब क्या होता है कि अचानक से जो फॉरेस्ट की जो साइलेंस होती है वो रिटर्न हो जाती है. इसके अलावा उसको कोई आवाज़ नहीं, बस सिर्फ घोड़े के चलने की आवाज़ होती है, उसके अलावा किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आती. और ये इतने में वो ट्रैवलर यहाँ से चला जाता है. सो व्हाट वाज द सिनेरियो, दैट एक बंदा आता है, दरवाज़ा नॉक करता है. दरवाज़ा नॉक करने के बाद वो क्वेश्चंस पूछता है, कोई उसके दरवाजे नॉक करने को रिस्पांस नहीं देता है. ठीक है, वो इसी तरह खड़ा हुआ, उसका घोड़ा वहाँ पे ग्रास खा रहा है. उसने दोबारा तेज़ी से नॉक किया. अंदर क्योंकि सिर्फ भूत थे तो उन्होंने वो उसको रिप्लाई नहीं कर सकते थे. ठीक है, इतनी में एक वो सारे स्टेयर्स के पास, जो अंदर जो घोस्ट होते हैं, वो स्टेयर्स के पास आ जाते हैं मून लाइट में. वहाँ पर एक एम्प्टी हॉल होता है, लेकिन वो उस बंदे को किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं कर रहे होते. फिर वो बंदा एक दफ़ा दोबारा दरवाज़ा नॉक करता है, ये कह के कि मैं आया था, मैंने अपना वादा पूरा किया. ठीक है, मैंने दरवाज़ा मैसेज अपना दिया, और अगर कोई मुझे सुन रहा है तो काइंडली मेरा मैसेज उनको दे दे. लेकिन अंदर से किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आया. इतने में वो अपने घोड़े पे बैठता है, वो वापस चला जाता है, और खामोशी उसी तरह रह जाती है, जो उस खाली घर की खामोशी होती है. सो व्हाट वाज the result, what has happened the next after this, we don't know. It's a kind of a mysterious poem. Hope so you understood the point.